Hey everyone, in today's session we are going to discuss the most famous Indian writer who is Mulk Raj Anand. So, we will talk about Mulk Raj Anand, his life and career, and some important facts about his biography. So, let's start with Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born in 1905 and he was died in 2004. Now, we have three important writers of Indian writing in English. We have R.K. Narayan, Raja Rao, and Mulk Raj Anand. All of these three are known as trio of Indian English writing. Now, let's talk about Mulk Raj Anand. He is from Punjab and he has depicted the sufferings of socially disadvantaged people in India. That is why he is called as Dickens of the East. You might know about Charles Dickens, who is a famous writer of Victorian era. We will discuss about Charles Dickens in our Victorian age. Mulk Raj Anand was influenced by both Eastern as well as Western philosophical tradition. He has worked with T.S. Eliot in his magazine called Criterion. He has collaborated with T.S. Eliot in it. And he was influenced by Charles Darwin and Karl Marx. We will discuss about these writers later in our videos. When he was a student, he participated in freedom struggle, and when he was in the college, he was arrested and imprisoned for participating in the Gandhian movement. Now, he has received Padma Bhushan and Sahitya Academy Award for all of his achievements. Now, let's talk about our first work, which is Untouchable. Untouchable was published in 1935. The novel established Anand as one of India's leading authors. The book was inspired by his aunt's experience when she had a meal with a Muslim lady and was outcast by his family. So, the plot of the novel revolves around the argument for eradicating the caste system. This novel dwells upon two systems. First is caste system and the other one is sanitization. E.M. Forster, who is a British writer and who is Anand's friend, has written Introduction of Untouchable. Remember this, E.M. Forster has written Introduction of Untouchable. Now, let's move to the characters. Our first character is Bakha, who is sweeper in Bulandshahr, and Bakha is our protagonist of the story. Then we have Lakha, who is father of Bakha. Next one is Sohini, who is sister of Bakha. Then Havildar Charat Singh, who is a hockey player. Next is Pandit Kalinath, who is a pandit in the village. Then Ramcharan and Chota, who are friends of Bakha. Now let's move to the summary. बाखा जो कि प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का और एक स्वीपर है, उसके दिन की शुरुआत होती है उसके पिता लाखा के चिल्लाने से। उसके पिता चिल्ला रहे होते हैं कि जाकर अपना काम करो स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, पर जो बाखा जो है वो अपने पिता को इग्नोर करता है पहले तो, पर उसके बाद में उसे उठना ही पड़ता है क्योंकि एक कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में चरत सिंह, वो आवाज लगाता है बाखा को क्योंकि उसे बाथरूम यूज करना है। तो बाखा उठता है और जाकर चरत सिंह के घर पर और साफ करता है उसका बाथरूम। पहले तो जो चरत सिंह है वो काफी गुस्सा होता है बाखा पर, चिल्लाता है उसके ऊपर कि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो उन्हें नहीं निभा रहा है, पर उसके बाद में जो चरत सिंह है वो काम डाउन हो जाता है और खुश होता है बाखा के काम से और बाखा को बोलता है कि आज शाम को मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, एक होके दूंगा। तो बाखा जो है वो खुश होकर वहां से चला जाता है। तो उसके बाद में बाखा जो है वो अपना सुबह की शिफ्ट का काम कंप्लीट करता है और काम कंप्लीट करने के बाद में वो जब अपने घर पर जाता है तो उसे बहुत प्यास लगती है लेकिन घर पर पानी नहीं होता। तो इस पर जो बाखा की बहन है सोहिनी, वो बाखा को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पर जब वो पानी लेने जाती है तो वहां बहुत लंबी भीड़ होती है, तो
सोहिनी जो है वहां पर खड़ी होकर इंतजार करती है, पर काफी देर हो जाती है। उसके बाद में जो पंडित है, हमारा इस स्टोरी में कैरेक्टर पंडित कालीनाथ, वो आते हैं और वो सोहिनी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें पानी दिलवाता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें कल आना होगा और मंदिर की साफ सफाई करनी होगी। तो सोहिनी जो है वो एग्री हो जाती है कि ठीक है, पर अभी तो मुझे पानी दिलवा दो। तो वो पानी लेकर फिर घर जाती है। तो उसके बाद में जो है बाखा, वो अपने घर पर जाता है और उसके जो पिता है लाखा, वो बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर पर पड़े हैं और वो बाखा को बोलते हैं कि तुम मेरी ड्यूटी करके आओ और टाउन की क्लीनिंग करके आओ और मंदिर को भी साफ करके आओ। तो ऐसे में बाखा के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो टाउन की सफाई करने जाता है। टाउन की क्लीनिंग करने करने में ही उसको बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। तो जब बाखा टाउन की क्लीनिंग करके और मंदिर की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में टाउन में काफी भीड़ होती है और वो एक पर्सन के साथ टकरा जाता है। उसके टकराने पे वो जो आदमी है वो बाखा को मारने लगता है। तो किसी तरीके से उसको एक और पर्सन है वो उसे छुड़वा देता है बाखा को मारने से। उसके बाद में बाखा मंदिर जाता है। मंदिर में जाकर बाखा क्या देखता है कि वहां पर भीड़ लगी हुई है। पंडित कालीनाथ जो है वो चिल्ला रहे हैं सोहिनी, जो कि बाखा की सिस्टर है, उसके ऊपर। तो बाखा जाकर सीढ़ियों पे देखता है कि क्या बात है। तो वहां पर वो अपनी बहन को देखता है, सोहिनी को, और उसे हाथ पकड़कर भीड़ में से बाहर निकालता है। उस पर सोहिनी बोलती है कि जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है और अब ये बोल रहे हैं कि मैंने इन्हें पॉल्यूट कर दिया और ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो अब बाखा सोहिनी को बोलता है कि तुम घर जाओ और तुम्हारी जो भी ड्यूटीज है वो मैं पूरी करूंगा। तो अब जो बाका है वो सोहिनी की ड्यूटीज पूरी करता है और उसके बाद में वो खाना मांगने जाता है। उनको जो खाना लेना होता है वो दूसरों के घरों से लेना होता है। तो वो एक घर में जाता है खाना लेने के लिए। तो वहां पर जब वो आवाज लगाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो बाका क्या करता है, उनके बाहर ही एक यार्ड है, उनके घर के बाहर, वहां पर वो लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। उसके बाद एक साधु आता है। साधु के बुलाने पर घर के अंदर से एक औरत आती है और वो बाका को देखकर बहुत गुस्सा होती है कि हमारे घर के आंगन में सो गया, क्योंकि एक अनटचेबल है। तो उसके बाद में वो बाका को बोलती है कि मैं तुम्हें रोटी दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें ये मेरा पूरा का पूरा यार्ड जो है वो क्लीन करना होगा। बाका वहां से क्लीन करता है और चला जाता है। और जैसे ही वो खाना खाने बैठता है तो वो इस खाने को खाना नहीं चाहता और बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड जो कि रामचरण की सिस्टर की शादी में जा रहा हूँ। तो वहां पर ये जाता है रामचरण की सिस्टर की मैरिज में और वहां पर उसे उसका एक और फ्रेंड मिलता है छोटा। तो कुछ देर वो वहां पर रुकते हैं, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं शादी की सेरेमनी से। तो वहां पर जो छोटा है वो पूछता है बाका से कि क्या हुआ, तुम काफी डिप्रेस्ड लग रहे हो। इस पर बाका उसे सारी कहानी बता देता है कि किस तरीके से उसकी बहन के साथ में कितना मिस ट्रीटमेंट हुआ है। तो जो छोटा है वो बाका से पूछता है कि तुम बदला लेना चाहते हो। तो बाका जो है वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना। तो ऐसे में छोटा जो है वो उसे काम डाउन करने के लिए उसे बोलता है कि चलो फिर हम हॉकी खेलते हैं। तो इतने में ही बाका को याद आ जाता है चरत सिंह के बारे में, जिसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे गिफ्ट देगा एक हॉकी का। तो वो भागकर चरत सिंह के घर पर जाता है। वहां पर चरत सिंह जो है उसका बिहेवियर कुछ अलग ही रहता है बाका के साथ में। चरत सिंह जो है वो बाका को अपनी हर एक चीज छूने की परमिशन देता है, जो कि बाकी गांव वाले उसे नहीं देते। तो वहां पर जो चरत सिंह है वो उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करता है और उसे एक ब्रांड न्यू हॉकी देता है खेलने के लिए। तो बाका खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास जाता है, हॉकी खेलता है और दूसरी टीम को हरा भी देता है। अब ऐसे में जो दूसरी टीम है वो काफी गुस्सा हो जाती है और बाका के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस लड़ाई में जो दूसरी टीम का लड़का है उसके छोटे भाई को चोट लग जाती है। अब बाका जो है वो अपने हाथों में उस लड़के को उठाकर उसके घर पर लेके जाता है। जैसे वो उसके घर पर लेके जाता है तो उसकी जो माँ है उस बच्चे की जिसको चोट लगी है वो उल्टा बाका पर ही चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को पॉल्यूट कर दिया। तो वहां से बाका दुखी होकर वापस अपने घर आता है।
घर आने के बाद में उसके जो पिता हैं लाखा, वो चिल्लाते हैं बाखा पर कि तुम पूरा दिन कहाँ थे, फिर बाखा के जो पिता हैं वो बोलते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ, वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो बाखा दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां पर एक क्रिश्चियन बाखा को मिलता है। वो क्रिश्चियन बाखा को देखकर और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें चर्च में लेके चलता हूँ। तो बाखा उसकी बातों से, उसकी काइंडनेस से काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। हालांकि जो बाखा है वो उसकी बातों से काफी बोर हो जाता है। तो जैसे ही वो उसे चर्च में लेके जाता है, वहां से उस क्रिश्चियन की जो वाइफ है वो चिल्ला पड़ती है अपने पति पर कि तुम रोज रोज ऐसे ही किसी को भी उठाकर ले आते हो। तो बाखा समझ जाता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो बाखा वहां से भी वापस आ जाता है और वहां से वापस आकर वो पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर बैठा होता है, वहां पर काफी भीड़ लगी हुई है। तो बाद में बाखा को पता चलता है कि यहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले हैं, उनकी कोई स्पीच होने वाली है। थोड़ी देर के बाद महात्मा गांधी वहां पर आते हैं। वहां पर कुछ कवि भी हैं और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं वहां पर। तो जो महात्मा गांधी हैं वो बोलते हैं वहां पर कि हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के जाने के बाद वहां पर कुछ पॉइट्स हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ और भी पर्सन्स हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। उनकी कुछ बातें बाखा को समझ में आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो उनमें से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पर फ्लश सिस्टम होना चाहिए, मतलब फ्लश सिस्टम अगर होगा तो स्वीपर का जो काम है वो बंद हो जाएगा। तो इससे बाखा काफी इंप्रेस हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। उसे सिर्फ यही बात समझ में आती है कि स्वीपर्स जो हैं अब उनको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और पूरी की पूरी बात अपने पिता को बताता है। देन वी हैव सम इम्पोर्टेंट कोटेशंस रिगार्डिंग दिस स्टोरी। कॉलोनल हचिंसन जो है वो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द इविल, कि अगर क्रिश्चियनिटी होगी तो सारी बुराइयां जो इंडिया में से हैं वो चली जाएगी। और महात्मा गांधी बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर इक्वल। कुछ मॉडर्निस्ट पॉइंट हैं जो बोलते हैं कि इंडिया में फ्लश सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उससे जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो दैट वाज अबाउट untouchable. Now let's move to our next work, which is Coolie. Like much of his other works, this novel is concerned with the consequences of British rule in India and with the rigid caste system that structured Indian society. जो मुल्क राज आनंद है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसे ही प्रोमिनेंट थीम रखा है अपने सभी वर्क्स में, और ऐसा ही कुछ हुआ है कूली के वर्क में भी। एंड कूली इज टर्म यूज्ड फॉर एन अनस्किल्ड लेबरर। लेट्स टॉक अबाउट आवर कैरेक्टर्स। आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज मुनु, हु इज प्रोटैगनिस्ट। मुनु एक अनाथ बच्चा है। देन वी हैव बाबू नाथू राम जो एक बैंक क्लर्क है। Then Premchand, who is doctor and who is brother of Babu Nathuram. Then we have Sheila, who is daughter of Babu Nathuram. Then we have Prabha, owner of pickle factory. Then Sir Todelmar, who is public prosecutor. Then we have Ganpat, who is partner of Prabha. Then Mrs. Manwaring, Munu runs over by her car. Now let's talk about the summary. आनंद्स नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय मुनु। मुनु जो है वो एक अनाथ लड़का है, वो रहता है अपने अंकल और आंट के साथ। नोवेल की जब शुरुआत होती है तभी उसके जो अंकल और आंटी हैं वो मुनु को बोलते हैं कि अब हम तुम्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। तो मुनु जो है वो पास में ही एक टाउन है, वहां पर जाता है और वहां पर जाकर उसे एक काम मिल जाता है एज अ सर्वेंट। और किसके घर में काम मिलता है? बाबू नाथूराम जो कि एक बैंक क्लर्क है। अब बाबू नाथूराम की जो वाइफ है वो काफी क्रूअल टाइप की लेडी है। वो मुन्नू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, उससे बहुत सारा काम कराती है पर उसे खाना अच्छे से नहीं देती है। पर वहीं पर बाबू नाथूराम के भाई हैं जो कि है प्रेमचंद जो एक डॉक्टर हैं,
वो मुन्नू के साथ काफी अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो उसकी वजह से मुन्नू जो है वहां पर रह रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि बाबू नाथूराम की बेटी है शीला, उसे चोट लग जाती है मुन्नू की वजह से। तो उस पर उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बाबू नाथूराम उसे मारता है। तो वहां से मार खाने के बाद मुन्नू जो है भाग जाता है और भाग जाता है दौलतपुर। दौलतपुर में वो मिलता है प्रभा से, जो कि पिकल फैक्ट्री की ओनर है। तो वहां पर उसको शरण मिल जाती है मुन्नू को, मुन्नू प्रभा के साथ रहता है। हालांकि जो काम है वहां पर वो काफी हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी मुन्नू को वहां पर लव और रिस्पेक्ट मिलती है, तो मुन्नू वहां पर रह रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर यहाँ पर भी जो मुल्कराज आनंद है उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो पुअर पीपल है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। सर टोडरमल एक कैरेक्टर है जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उन्हें प्रभा जो है वो फ्री में जैम भी देती है और पिकल भी देती है, ताकि जो सर टोडरमल है वो उसकी फैक्ट्री आराम से चलने दे। उसके कुछ दिनों बाद गणपत है जो कि प्रभा का पार्टनर है, वो उसे चीट करता है प्रभा को और उसे बैंकरप्ट करके वहां से भाग जाता है। तो अब जो प्रभा है वो अब मुन्नू को नहीं रख सकती, तो वहां से भी मुन्नू चला जाता है। अब जो मुन्नू है वो एक एलिफेंट ड्राइवर से मिलता है जो उसे बॉम्बे ले जाता है। वहां पर जाकर मुन्नू बहुत खुश होता है बॉम्बे को देखकर, पर उसे जो है गलियों में अपनी रात बितानी पड़ती है। उसके बाद उसे एक फैक्ट्री मिल में काम मिल जाता है, पर कुछ ही दिनों के बाद जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं और वहां से उनकी स्ट्राइक में जो मुन्नू है वो वहां पर गुम हो जाता है। तो जब मुन्नू गलियों में घूम रहा होता है तो वो टकरा जाता है एक गाड़ी के साथ में, जो कि है मिसेस मैनवेरिंग की। तो मिसेस मैनवेरिंग की गाड़ी के आगे मुन्नू आ जाता है और बेहोश हो जाता है। मिसेस मैनवेरिंग जो है वो मुन्नू को बॉम्बे से शिमला ले जाती है। मिसेस मैनवेरिंग काफी काइंड लेडी है, तो वो मुन्नू की देखभाल करती है और उसे एज अ सर्वेंट काम भी दे देती है। मुन्नू वहां पर काम करता है, पर वहां पर भी जो किस्मत है, जो दुर्भाग्य है, वो मुन्नू का पीछा नहीं छोड़ता। मुन्नू जो है उसे डिजीज हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज हो जाती है उसको, और मुन्नू जो है वो मर जाता है। So that was the tragic end of Munu. Now let's move to our another work, which is Big Heart. Big Heart was published in 1945. Now let's move to the characters. Our first character is Ananta, who is a coppersmith. Next one is Murlidhar and Gokul Chand. Both of these Murlidhar and Gokul Chand are factory owner. Next we have Satyapal, who is student leader. Then Puran Singh Bhagat, who is a poet. Then we have Ralia, an ex-laborer. That was about characters. Now let's talk about some important facts about the novel. The novel is written in the stream of consciousness style. There is a conflict between coppersmith and capitalist. The entire action takes place in a single day. The theme of the novel is conflict between tradition and modern machines. Now, let's start the story. The story of the novel takes place in Amritsar. The protagonist of the novel is Ananta, the man with a big heart. अनंता जो है उसने गांधीयन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया है। उसने काफी बार फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी पार्टिसिपेट किया है। अनंता जो है वो काफी परेशान रहता है जब उनके गांव में, अमृतसर के एक गांव में, मुरलीधर और गोकुल चंद नाम के पर्सन्स हैं जो कि एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं गांव में। एक तरफ से जो अनंता है वो जॉबलेस होने पर काफी परेशान होता है और दूसरे तरफ से वो खुश भी होता है, क्योंकि जो मॉडर्निटी है और एफिशिएंसी है मशीन्स की, उसके आने से काफी प्रोग्रेस होगी उनके गांव में। पर उसके बाद में क्या होता है कि जो सत्यपाल है, पूरन सिंह भगत है और जो रैलिया है, ये अनंता के अगेंस्ट रहते हैं। अनंता की जो गांधीयन अप्रोच है वो इन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती
और जो रेलिया है वो पागल हो जाता है और अपने पागलपन में वो अनंता को मार देता है। उसके सिर को वो मशीन के ऊपर मारता है बार बार में, जिससे कि अनंता की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जीत होती है मशीन्स की over humans. So that was about the big herd. Now let's move to our next work, which is Two Leaves and a Bud. Two Leaves and a Bud was published in 1937. Now let's move to the characters. Our first character is Gangu, who is a peasant. Then Sajani, who is Gangu's wife. Then Leela, daughter of Gangu. Then we have Buddhu, who is son of Gangu. Then Reggie Hunt, who is a British officer. Now let's talk about the story. The novel talks about a peasant who is Gangu. Gangu जो है वो असम के एक प्लांटेशन में काम करता है। तो ये जो गंगू है ये वहां पर काफी हार्ड वर्क करता है, पर फिर भी इसको खाने की जो रोटी है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जैसे तैसे ये अपना गुजारा कर रहे होते हैं, पर ये काफी परेशान रहता है। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वहां पर वो इनको बहुत परेशान करते हैं। और एक बार जो गंगू की बेटी है लीला, उसके पीछे ब्रिटिश ऑफिसर्स पड़ जाते हैं। तो अपनी बेटी को ये बचाता है और बचाते बचाते जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो गन है वो इसके सिर पर शूट हो जाती है, जिससे कि गंगू जो है वो मर जाता है। सो द स्टोरी टॉक्स अबाउट द अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड स्टारवेशन। इस स्टोरी में बताते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो रूल करते हैं इंडियंस के ऊपर। इस नॉवल में मुल्क राज आनंद ने रेसिज्म को अपनी थीम रखा है। So that was about Two Leaves and a Bud. Now let's move to our next work, which is a trilogy. We have three works in this trilogy. The first is The Village, second is Across the Black Water, the third one is The Sword and the Sickle. हम इन तीनों वर्क्स के बारे में बात करेंगे, इनकी समरी के बारे में बात करेंगे, इनकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये जो वर्क्स हैं ये काफी ब्रीफ समरी में लिखे गए हैं बाय आनंद, पर फिर भी हम इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ट्रिलॉजी है और काफी इम्पोर्टेंट है। So let's talk about our first part of the trilogy, which is The Village. The Village was published in 1939. इसमें एक ही कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसका नाम है लाल सिंह। लाल सिंह जो है उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लाल सिंह है वो अपने विलेज के जो नॉर्म्स हैं, उनके विलेज में, उनके गांव में जितने भी जो भी रिवाज हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, वो उनके अगेंस्ट जाता है और वो अपने आप को आर्मी में एनरोल्ड करा लेता है। तो जब वो आर्मी से वापस आता है तो वो देखता है कि किस तरीके से उसका जो घर है वो तहस नहस हो चुका होता है, उसके फैमिली के सभी मेंबर्स मर चुके होते हैं। तो वहां से आने के बाद में वो देखता है कि उसका कुछ भी नहीं बचा है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क, व्हिच इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स. अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स वाज पब्लिश्ड इन 1939. ये स्टोरी बेस्ड है लालू नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जो कि एक सिपाही है वर्ल्ड वॉर 1 में। लालू इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन अगेंस्ट फ्रांस इन वर्ल्ड वॉर 1. तो जो लालू है वो एक इनोसेंट पीजेंट है जिसे वॉर के बारे में कुछ नहीं पता। वहां पर डिस्ट्रक्शन को देखकर वॉर का लालू बहुत परेशान होता है। तो जब वो वॉर से वापस आता है तो वो देखता है कि किस तरीके से उसकी जो फैमिली है वो सफर कर रही है, उनकी लैंड जो है वो उनसे छीन ली जाती है। सो दैट वाज अबाउट अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स विद अ single character Lalu. And remember one thing, it is the only work which talks about World War I. Now let's talk about another work, which is The Sword and the Sickle. The Sword and the Sickle was published in 1942. We will talk about some important facts about The Sword and the Sickle. The title of the novel is taken from George Orwell. George Orwell, who is a famous writer. The book deals with the topic of social and political structure, especially the rise of communalism. So that was about The Sword and the Sickle. Now let's move to our another
collection which is a collection of autobiographies. जो मुल्क राज आनंद है वो चाहते थे कि वो 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखे जिसे वो नाम देना चाहते थे 7 एजेस ऑफ मैन, लेकिन वो 7 ऑटोबायोग्राफीज नहीं लिख पाए तो उन्होंने 4 ही ऑटोबायोग्राफीज लिखी। और फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है 7 Summers which was published in 1951. It talks about 7 years of his life. Next autobiography is Morning Face which was published in 1968. It talks about his growth of childhood to adulthood. ये जो वर्क है इसके लिए मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। Our next autobiography is Confessions of a Lover which was published in 1976. इसमें उन्होंने बात की है अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स की, पैट्रियोटिक फीलिंग्स की और अपने लव अफेयर के बारे में। Our next autobiography is Bubble which was published in 1984. In it, he talks about his stay in England as a scholar. The hero of this work is Anand, but he wrote under disguise of the name of Krishna Chandra. So, that was about his collection of autobiographies. Now, let's move to our next work, which is Private Life of an Indian Prince. It was published in 1953. The work Private Life of an Indian Prince is a semi-autobiographical work in which the hero goes through a mental breakdown. और जो आनंद हैं वो भी मेंटल ब्रेकडाउन के दौर से गुजरे हैं, उन्होंने भी सफर किया है मेंटल ब्रेकडाउन। एंड the work deals with the abolition of princely state systems. So that was about the private life of an Indian prince. Now let's move to our next work, which is The Old Woman and the Cow, which was published in 1960. ये जो स्टोरी है द ओल्ड वुमन एंड द काउ, ये एक एंशिएंट मिथ पर बेस्ड है। दिस इज द ओनली नॉवल विच हैज अ वुमन, और ये जो औरत है इसका नाम है गौरी, जिसके पास एक काउ है। और ये जो वर्क है ये एक ट्रिब्यूट है टू इंडियन वुमेनहुड। सो दैट वाज अबाउट मुल्क राज आनंद। We will meet in our next video lecture. Till then, have a nice day. Stay tuned to pavitraacademy.com.